السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جنوبی بلوچستان کے ترقیاتی پیکج پر کام کی رفتار کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ وزیر اعظم کی 655 ارب روپے کے 200 ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہر ماہ اور ایگزیکیوشن کمیٹی کا اجلاس ہر 2 ہفتے بعد بلانے کی ہدایت۔ انشورنس کا دائرہ کار ذرات تک بڑھایا جائے، کسی بھی فراڈ یا اسکیم کے بارے میں آگاہی بینک کی ذمہ داری ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا کراچی میں وفاقی انشورنس محتسب کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب۔ اپوزیشن چور، نااہل، کرپٹ اور مسترد شدہ لوگوں کا ٹولہ ہے۔ اگلے الیکشن میں سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے پہلے نمبر پر وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کرک میں جلسے سے خطاب۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے ڈاکٹر نعمان نیاز اور کرکٹر شعیب اختر کو اپنے گھر بلا کر صلح کرا دی۔ نعمان نیاز نے شعیب اختر سے معذرت کر لی۔ بات اتنی نہیں تھی کہ اس پر اتنی گفتگو ہوتی، لیکن سوشل میڈیا اب اتنا بڑا ہے کہ چھوٹی باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ حکومت غریب خاندانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ احساس راشن پروگرام سے متعلق آگاہی کے لیے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا مختلف شہروں کا دورہ۔ عوام اور دکانداروں کو اس پروگرام سے متعلق آگاہ کیا۔ پاکستان نے بابا گرو نانک کے 552ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے تقریباً 3000 سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کر دیے۔ پاکستان میں امن و امان کے بارے میں بھارتی پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ دنیا بھر کے سکھ بلا خوف و خطر پاکستان آ کر اپنے روحانی پیشوا کے جنم دن کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ سکھ رہنماؤں کی یقین دہانی۔ تیرے پانی اور مانی میں تاثیر ہی بڑی ہے چاچڑ۔ سائیں مرشد، سچ پوچھو تو یہ دانے میری اپنی زمین کے ہیں۔ زمانے کی ہوا کا رخ بدل چکا ہے چاچڑ۔ گردش ہے بابا، گردش۔ نہ سائیں، نہ۔ بے ساختہ اداکاری کا ایک اور خوبصورت باب بند ہوا۔ پاکستان فلم ٹی وی کے معروف اداکار سہیل اصغر بھی ہم سب کو اداس کر گئے۔ سہیل اصغر گزشتہ 1.5 سال سے علیل تھے۔ نماز جنازہ کل نماز عصر کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی میں ادا کی جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی پہلی مرتبہ اٹھانے کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بےتاب۔ فاتح کون؟ فیصلہ کل دبئی میں ہوگا۔ آسٹریلیا دوسری مرتبہ اور نیوزی لینڈ پہلی مرتبہ فائنل کھیلے گا۔ مقابلہ شام 7 بجے سے دیکھیے PTV اسپورٹس پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تمام خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔
बहारों के मेरे वतन 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 तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शोर से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन शुगुफ्तगी गुले नस्तरन नहीं भूले शुगुफ्तगी गुले नस्तरन नहीं भूले हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन करियो मंजिल जिगरास जाय चुनो माय मशानी करियो मंजिल जिगरास जाय चुनो माय मशानी और कैबिनेट आवर में तफसीलात का आगाज़ करेंगे। जनूबी बलोचिस्तान के तरक्की के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जनूबी बलोचिस्तान के तरक्याती पैकेज पर काम की रफ्तार का जायज़ा लेने के लिए आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने तरक्याती काम की सुस्त रवि और वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास न होने पर तशवीश ज़ाहिर की। वज़ीर आज़म को बताया गया कि गुज़िश्ता साल एपेक्स कमेटी का सिर्फ एक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने 655 अरब रुपए के 200 तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास हर माह जबकि एग्जीक्यूशन कमेटी का इजलास हर 2 हफ्ते बाद बुलाने पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को तुर्बत एयरपोर्ट और गवादर तुर्बत में नर्सिंग कॉलेज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्याती मनसूबों पर काम का जायज़ा लेने और किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए वो बज़ात खुद हर माह जायज़ा इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि फैली आबादी और तवील फासलों की वजह से बलूचिस्तान के मसाइल मुल्क के बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ हैं और हमें बलूचिस्तान के आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए गैर मामूली हल निकालना होगा। उन्होंने मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, तवानाई और बहरी उमूर की वजारतों और हुकूमत बलूचिस्तान को हिदायत की कि वो तवानाई, ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे के मंसूबे में काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए एक दूसरे के साथ करीबी राब्ता रखें। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि बलूचिस्तान वसाइल से माला माल है और वो मुल्क की 40% गैस की ज़रूरियात पूरी करता है। सूबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत बलूचिस्तान को हिदायत की कि वो निचली सतह तक अपने गवर्नर्स के निज़ाम में तब्दीली लाएं ताकि न सिर्फ तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ हो सके बल्कि आम आदमी को भी बेहतर खिदमात की सहूलियात मैसर हों। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को भी हिदायत की कि हुकूमती इक़दामात के हवाले से आवाम की आगाही के लिए मौसर मीडिया मुहिम का भी आगाज़ किया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल में मोहतसिब के इदारों का अहम किरदार है। इंश्योरेंस और वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब के बारे में आगाही से शहरियों का एतमाद बढ़ेगा। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दयानतदारी की बुनियाद पर कायम होने वाला हर ब्रांड कामयाबी की जमानत है। तफसील जानते हैं अली असगर अरबाब से। सेमिनार से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तनाज़ात इंसान की फितरत का हिस्सा हैं और तनाज़ात को जल्द हल करने से मसाइल कम होते हैं। उन्होंने कहा कि जदीद दुनिया में गाहक की शिकायत को सही समझा जाता है जिससे लोगों का एतमाद बढ़ता है। उन्होंने कहा कि दयानतदारी की बुनियाद पर कायम होने वाला ब्रांड पाकिस्तान की कामयाबी की जमानत है। जो पाकिस्तान का दयानतदारी वाला ब्रांड है, तो ब्रांड पाकिस्तान जो है वो दयानतदारी की बुनियादों पर अगर कायम करेंगे
تو لانگ لیونگ ہوگا, لمبا چلے گا, اور اس میں اللہ برکت بڑی ڈالے گا. صدر مملکت نے کہا کہ وہ وفاقی انشورنس مؤسسے کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. انشورنس سے متعلق شکایات کے حل کے حوالے سے فیصلوں کی تشہیر کی جائے تاکہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو. جو آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ فگر بیان فرمایا کہ جو بینیفٹس ہوئے وہ 400 ملین روپیز سے بڑھ کر 2 بلین روپیز تک پہنچے. دس پیپل آف پاکستان شوڈ بی میڈ اویئر. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ حکومت نے لوگوں کو علاج کی سہولت کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا اور انشورنس کمپنی کی مدد سے لوگوں کو بہتر علاج کی سہولت فراہم کی جاری ہے. انہوں نے کہا کہ انشورنس کے دائرے کار کو زراعت تک بڑھایا جائے. اس موقع پر وفاقی محسب ڈاکٹر محمد خاور جمیل, چیئرمین انشورنس ایسوسی ایشن اظفر ارشد اور دیگر مقررین نے خطاب کیا اور انشورنس کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اس موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وفاقی انشورنس محسب کو شکایات کرنے والوں کو انشورنس کلیم کے چیک دیے. پروسیکیوشن کو ختم کر پرسویشن کے اوپر تصفیہ کرائیں, اور اس میں پہلے جب پروسیکیوشن تھا 400 ملین کے قریب لوگوں کو مالی فائدے ہوتے تھے, اور جب پرسویشن کے اوپر میں نے کہا تو 2020 میں 2 بلین سے زیادہ لوگوں کو مانیٹری ریلیف ملا ہے اور کوئی اپیل میں نہیں گیا. اس سے پہلے وفاقی انشورنس محسب کی کارکردگی اور کام کے حوالے سے دستاویزی فلم دکھائی گئی. علی اصغر ارباب, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. وفاقی وزیر مراد سعید اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پر آنے کی تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے. اپوزیشن چور, نااہل, کرپٹ اور مسترد لوگوں کا ٹولہ ہے. خیبر پختونخوا حکومت کارکردگی میں پہلے نمبر پر ہے. اگلے الیکشن میں سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. کرک میں جلسہ عام سے خطاب کی تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے عام شہریوں کو صحت کارڈ جیسی سہولت فراہم کی ہے. خیبر پختونخوا کے عوام صحت کارڈ پر پورے پاکستان میں علاج کروا سکتے ہیں. 11 جماعتیں مل کر روزانہ پریس کانفرنسز, ٹاک شوز میں تبصرے, بریکنگ نیوز, لیکن جب آپ ڈیرہ غازی خان میں سارے مل کر جلسے کرنے جاتے ہو تو کارنر میٹنگ بھی نہیں ہوتی. عمران خان ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, نیا پاکستان کارڈ. اس میں ہر شہری کو علاج مفت, غذائی قلت کے شکار بچے ہیں ان کو خوراک مہیا کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے اس کارڈ میں دیا جائے گا. یونیورسٹی کے طلبہ جو قابل ہے وہ بھی نیا پاکستان کارڈ کا حصہ. آٹا, گھی, دال ہے وہ بھی اسی کارڈ کے ذریعے آپ سبسیڈائز ریٹس پہ حاصل کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے کرک کو کوئی منصوبہ نہیں دیا. کرک کے شہریوں کو گیس ان کے گھر کی دہلیز پر ملے گی. انشاءاللہ دوسرا پروجیکٹ 5 ارب کا پورے کرک کو انشاءاللہ یہ گیس ان کی دہلیز پر ملے گی انشاءاللہ جی. یہ آپ سب کا خپل وزیر اعلیٰ ہے, یہ اکیلے سواتیوں کا نہیں ہے, یہ پورے خیبر پختونخوا کا ہے. اور جو میرے دل میں ہے صدرن ڈسٹرکٹ کے لیے, جو میں دیکھتا رہا, جو پانی کی مشکلات ہے, جو روڈز کے آپ کی مشکلات تھی, جو گیسز کی مشکلات تھی, جو ایجوکیشن کی مشکلات تھی, اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کچھ آنے 2 سالوں میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے وہ پروجیکٹ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے گیس کے پیداواری اضلاع میں گیس نیٹ ورک کی بحالی اور توسیع کے 9 ارب روپے کی لاگت کے 257 دیہات کو گیس کی فراہمی کے منصوبے اور کامرس کالج کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا جس پر 31 کروڑ روپے لاگت آئے گی. کرک شہر کے لیے 73 کروڑ روپے کی لاگت کی گریوٹی واٹر سپلائی اسکیم, 2.8 ارب روپے کی لاگت کے 9 کلومیٹر طویل بائی پاس روڈ کی تعمیر, 11 کلومیٹر لاگت کی 5 کلومیٹر سڑک کی بلیک ٹاپنگ اور 44 کروڑ روپے لاگت کے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے 4 منصوبوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پولیس کا مورال ہائی ہونا بہت ضروری ہے. پولیس افسران کو اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پولیس پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ 3.5 سال ہماری حکومت کے گزر گئے ہیں. میری جماعت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا حامی ہوں. میری سیاسی جماعت عمران خان کے ساتھ ہے, EVM مشین کے ساتھ ہے, اور میں عمران خان کی سوچ کا حامی ہوں کہ 70 سے دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں.
اور میں عمران خان کی ایک سوچ کا حامی ہوں کہ EVM مشین ہونی چاہیے. انٹرنیشنل ووٹنگ کے لیے بات چیت کر لیں, اس کا بیلٹ کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. TLP سے ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے اور اس معاہدے میں جو کچھ ہے چند دنوں بعد لوگوں تک آ جائے گا. ECL پہ شہباز شریف کا اور فواد حسن فواد کا, وہ پہلے بھی ECL پہ ہیں, انہوں نے ECL سے نکلنے کی درخواست نہیں دی. یہ ایک اور کیس نیب نے 15-20 دن پہلے بھیجا تھا. وزیر تعلیم شفقت محمود سے صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے ملاقات کی. اس موقع پر یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے نمائندے بھی موجود تھے. صوبائی وزیر تعلیم پنجاب نے کہا کہ اساتذہ اور طلباء سے اہم کچھ نہیں, اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے عین مطابق یکساں نصاب تعلیم پر ہر ممکن عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. یکساں نصاب تعلیم پر عمل نہ کرنے والے اسکولز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ خدمت انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور مخیر افراد ہمارے معاشرے کا حقیقی اثاثہ ہیں. لاہور میں المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کی زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوسروں کی مدد انسانیت کی معراج ہے اور جس سے فلاحی معاشرہ پروان چڑھتا ہے. تقریب سے معروف صحافی سہیل وڑائچ, سجاد میر اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. PTV کے پروگرام گیم آن ہے کے میزبان ڈاکٹر نعمان نیاز اور معروف کرکٹر سٹار شعیب اختر کے درمیان صلح ہو گئی ہے. ڈاکٹر نعمان نیاز نے شعیب اختر سے معذرت کی. وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے دونوں کو اپنے گھر مدعو کر کے صلح کروائی. وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے شعیب اختر اور ڈاکٹر نعمان نیاز کی ہمراہ لی گئی تصویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی. اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاع نے کہا کہ دوست 2-4 نکلتے ہیں کہیں لاکھوں میں, جتنے ہوتے ہیں سو اتنے ہی کم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بات اتنی نہیں تھی کہ اس پر اتنی گفتگو ہوتی, لیکن سوشل میڈیا اب اتنا بڑا ہے کہ چھوٹی باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سب اچھا ہے جس کا اختتام اچھا ہو. شعیب اختر, I am extremely sorry for whatever happened on screen. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کا ریزن یہ ہے 30 سال کی یاری ہے یار, that shouldn't go down. चलो बस ठीक है, he said it. He should have said it long time ago. No ji, it's never too late. اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ملک میں امن قائم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے. پاکستان میں جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے. ہمارا اتحاد بہت اچھا ہے, اتحادیوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ صرف شو بازیاں کرتے تھے جبکہ عثمان بزدار نے بہت کام کیا ہے. انہوں نے کہا جن کا خیال تھا وہ کبھی جیل نہیں جائیں گے ان سب کا احتساب ہو رہا ہے. احتساب کا عمل جاری ہے. عمران خان احتساب کے وعدے پر قائم ہے. حکومت اپنا وقت بھی پورا کرے گی, اپنی ترجیحات کے اوپر بھی کام کر رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اپوزیشن کی بات ہے تو یہ جو اپوزیشن ہے یہ اپوزیشن وہ ہے جو کہ NRO کے لیے ڈے 1 سے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہیں. انہوں نے اسمبلی میں عمران خان صاحب کو سپیچ نہیں کرنے دی, اس کے بعد کوئی بھی موقع ہو اس کے اوپر انہوں نے بے شمار کوششیں کی, عدم اعتماد, استعفے, لانگ مارچز, آر اور پار والے آج کل جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی قسم کا بھی جو ہے وہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ 0 برابر 0 ہے. اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کو ہونہار سپوتوں کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. انہوں نے کہا ہر کسی کو مثبت انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنے سے بہتر بنانے کی کوشش کرے. فاروق حبیب نے کہا بچوں اور بچیوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. انہوں نے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنے کے لیے کہا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا. احساس راشن پروگرام سے متعلق آگاہی کے لیے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور عوام اور دکانداروں کو اس پروگرام سے متعلق آگاہ کیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر روات, مندرہ, گوجرخان, سہاوا اور جہلم میں مختلف دکانوں کا دورہ کیا اور دکانداروں کو ایپ سے متعلق آگاہ کیا. وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے جہلم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت غریب خاندانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے 2 کروڑ سے زیادہ کم آمدنی والے شہریوں کے لیے سبسڈی دی ہے.
अवाम एहसास राशन प्रोग्राम से 30% सब्सिडी पर आटा, घी और दालें करीबी किराना स्टोर से खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक शहरी एहसास राशन प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाएगा और शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर का इंदराज करें। जांच पड़ताल के बाद अगर कवायद दुरुस्त पाए गए तो इससे राशन की खरीदारी पर रियायत मिलेगी। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास राशन प्रोग्राम के लिए सूबाई हुकूमत ने 15 अरब रुपए जबकि वफाकी हुकूमत ने 7 अरब रुपए फराहम किए हैं। उन्होंने कहा एहसास राशन प्रोग्राम के लिए किराना स्टोर्स का इंतखाब यूनियन काउंसिल की सतह पर किया जाएगा। हर दुकानदार को इस प्रोग्राम की आगाही के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी तरबियत दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि सूबे में ज़ाफ़रान और जैतून की पैदावारी सलाहियत से पूरा फ़ायदा उठाया जाए तो ज़रई मईशत को एक नई जहत मिलेगी। चित्राल के नवाही गाँव जंजरीत में ज़ाफ़रान और जैतून के फार्म का विजिट करते हुए उन्होंने कहा कि चित्राल को अल्लाह ने ऐसी ज़मीन और आबो हवा से नवाजा है कि ये ज़ाफ़रान और जैतून के लिए आइडियल है और इसी वजह से मैं आइंदा 3 सालों के बाद चित्राल में मुकम्मल तौर पर खुशहाली देख रहा हूँ। उन्होंने किसानों को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मुफ्त बीज, तकनीकी रहनुमाई के साथ साथ उन्हें मार्केटिंग के मरहले तक रहनुमाई और मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर किसानों में किसान कार्ड्स भी तकसीम किए गए। जैतून की काश्त को फरोग देने से मुतालिक ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। ज़रई अजनास की पैदावार बढ़ाकर मुल्क की मैशत को मुस्तहकम करने की हिकमत अमली के तहत नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर के ज़ेरे एहतमाम वैल्यू फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। मज़ीद तफसील बताएंगी सदफ अफजल। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। मुआहदे के तहत स्पेन पाकिस्तान में जैतून की काश्त को बढ़ाने से मुताल्लिक तहकीक को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा को स्कॉलरशिप्स फ्राहम करेगा। Italy and Pakistan have been working together on olive for decades, and now we want to enhance what has been done, always together, with 2 different projects, soft loan, and then we have another project going to start in the next weeks. It's called olive culture. NARC ने मुल्क में जैतून की काश्त और इसके फवाइद से आगाही के लिए मेले का भी एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और किसानों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स उन्होंने तैयार करके लेके आए, यानी हर एक की अपनी एक मेहनत, अपनी एक काविश। फेस्टिवल का ये मकसद है प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसकी मार्केटिंग हो। 2014 से हमने स्टार्ट किया था और 2017 में लास्ट हमारे अभी जो है वो प्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। मेन मकसद अवेयरनेस है कि ऑलिव की अवेयरनेस, और इसीलिए हम यहाँ पर स्टॉल किया। मार्केट भी इंशाल्लाह बनती जा रही है इसकी बहुत ज़्यादा। मेले में आने वालों के लिए स्टॉल्स पर जैतून की अफादियत और इसके इंतहाई मुनाफा बख्श होने से मुतालिक मालूमात फ्राहम की गयी। इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का रुकन बनने के बाद पाकिस्तान IOC की जानिब से फ्राहम करदा सहूलियात बशमूल मुल्क में तेल निकालने वाले यूनिट्स की तनसीब से फ़ायदा उठा सकेगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से खबर शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिएगा। एहसास राशन प्रोग्राम इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव और ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए। वी आर सपोर्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू डू द राइट थिंग। ऐसे दौर में है जो कि बड़ा मटीरियलिस्टिक दौर है, यहाँ लोग बेहिस होते जा रहे हैं। प्रोग्राम का एहसास नाम रखें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन ये थी कि हमने एक बहुत बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम लाना है। कैसे ये तयन करें कि कौन डिजर्विंग है? घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है या कुछ भी नहीं है, घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, घर में कितने लोग रहते हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक के 552वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत के लिए तकरीबन 3000 वीज़े जारी किए हैं। सिख यात्री 17 से 26 नवंबर तक ननकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्म स्थान, करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब समेत मुख्तलिफ गुरुद्वारों की तकरीबात में शरीक होंगे। भारत के अलावा दीगर मुल्कों से सिख यात्री भी तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे।
नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए उनकी जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिख रहनुमाओं ने पाकिस्तान में अमन व अमान के बारे में भारतीय प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार देते हुए दुनिया भर के सिखों से अपील की है कि वो बिला खौफ व खतर पाकिस्तान आकर अपने रूहानी पेशवा के जन्मदिन की खुशियों में शरीक हों। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात का आगाज 17 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान में होगा, जिनमें भारत समेत दुनिया भर और अंदरूनी मुल्क से हजारों सिखियाती शिरकत करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जिला इंतजामिया के ताउन से सिखियातियों के लिए रिहायश, ट्रांसपोर्ट, लंगर और सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमन का मैसेज है, भाईचारे का मैसेज है, रवादारी का मैसेज है और इंशाल्लाह जो हमारे आने वाले मेहमान हैं उनको हम वेलकम भी करेंगे और हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। हाइश का, ट्रांसपोर्टेशन का, लंगर का, सफाई का और तमाम इंतजामात कंप्लीट हैं। सिख रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन और अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। दुनिया भर से सिखियाती बिला खौफ व खतर अपने रूहानी पेशवा के जन्मदिन की खुशी मनाने के लिए यहाँ आए। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम इनकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के सिखों के, पाकिस्तान की पूरी अवाम के दिलों के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। बिला खौफ व खतर पाकिस्तान आए। जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग महफूज नहीं है, पाकिस्तान में अक़लियत महफूज नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। 3 रोज कैंप के दौरान सिखियाती ननकाना साहब शहर में वाक़ 7 गुरुद्वारों और गुरुद्वारा सुच्चा सौदा फरुखाबाद की यात्रा और वहाँ अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अक़लियती बिरादरी के तमाम त्योहारों पर बेहतरीन इंतजामात किए जाते हैं ताकि इस्लाम और पाकिस्तान का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाया जा सके। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ और सीनियर अदाकार सुहेल असगर कराची में इंतकाल कर गए। वो 1 हफ्ते से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर बहरिया टाउन कराची में अदा की जाएगी। सुहेल असगर का शुमार मुल्क के कामयाब और बेहतरीन अदाकारों में किया जाता है। वो लाहौर में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और 1978 से 1988 तक वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे। हाँ बाबा, तेरे पानी और मानी में तासीर ही बड़ी है चाचड़। सही मुर्शद, सच पूछो तो ये दाने मेरी अपनी जमीन के हैं। जमाने की हवा का रुख बदल चुका है चाचड़। गर्दिश है बाबा, गर्दिश। ना सही ना सोना मुर्शद। सुहेल असगर ने पाकिस्तान टेलीविजन के बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें चांद ग्रहण, प्यास, दुख सुख, खुदा की बस्ती, लाग, काजल घर समेत मुतादिद ड्रामे शामिल हैं। सुहेल असगर ने 2003 में छोटी स्क्रीन से बड़े पर्दे पर आए। वो गुज़श्ता 1.5 साल से अलील थे। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर पिछले 1 हफ्ते से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ताहम आज वो खालिक हकीकी से जा मिले। सुहेल असगर की रहलत से शोबिस इंडस्ट्री एक सीनियर और बासलाहियत आर्टिस्ट से तो महरूम हो गई, लेकिन उनकी बेहतरीन अदाकारी की बदौलत वो अपने मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। नाज़रीन, अभी खबर यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे खित्ते की तामीर, तरक्की और खुशहाली के लिए संग मील साबित होंगे। ईवान वज़ीर आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की पार्लिमानी कमेटी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत माशी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रही है। मानसेरा मुज़फ़्फ़राबाद मंगला मीरपुर एक्सप्रेस वे गेम चेंजर मनसूबा है, जिसकी तामीर से आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला मुख्तसर रास्ते से आपस में मुंसलिक हो जाएंगे। पंजाब के वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत इस्लाहात की बदौलत ज़रई शोबा तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को गैस कीमत में सब्सिडी दे रही है ताकि किसानों को खरीफ सीज़न के लिए हुकूमती नरखों पर खाद की फराहमी का अमल मुमकिन बनाया जा सके। हुसैन जहानिया ने कहा कि मुल्क में यूरिया खाद कसरत से तैयार की जा रही है। बरामद करने की सूरत में 1800 वाली बोरी 10,000 रुपये में दस्तयाब होती।
पंजाब के वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने कहा कि महफूज और खतरात से पाक माशरे का कयाम तरबियत याफ्ता नौजवानों की बदौलत ही मुमकिन है। शेखुपुरा में रेस्क्यू 1122 के रजाकारों की तरबियत मुकम्मल होने के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सनतों में हादसात की सूरत में मौके पर मौजूद वर्कर्स का तरबियत याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रेस्क्यू वर्कर्स में तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात भी तकसीम किए गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम सियासी इत्तेहाद नहीं, करप्ट टोले की पनाहगाह बन चुका है। करप्शन के मगरमच्छ पीडीएम की छतरी तले जमा हैं। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन के चले हुए कारतूस हर महाज पर नाकाम हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल कौम को गुमराह नहीं कर सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि कौम मुल्क को लूटने वालों के झांसे में नहीं आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया है। मर्दान में 75,000 एकड़ रकबे पर 12 लाख टन गन्ना काश्त किया जाता है। मिल मालकान की जानिब से काश्तकारों को कीमतों में बेहतरीन रिलीफ फराहम करने के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मर्दान से जावेद अख्तर। शुगर मिल मर्दान ने अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए 2021-2022 क्रशिंग सीजन वक्त से पहले शुरू कर दिया। हुकूमत की जानिब से 225 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया है, लेकिन मिल मालकान की तरफ से काश्तकारों को कीमतों में बेहतरीन रिलीफ दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में मिल का अमला और मजदूरों ने काफी तादाद में शिरकत की। गवर्नमेंट का जो रेट है, गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की शुगर केन के लिए मुकर्रर की है वो 225 रुपए पर मन है, यानी पर 40 kg है। तो हम तकरीबन 75 रुपीज सब्सिडी दे रहे हैं। जिला मर्दान में 75,000 एकड़ रकबे पर 12 लाख टन गन्ना की फसल काश्त की जाती है, जबकि मिल की जरूरियात को पूरा करने के लिए 4 लाख टन गन्ना दरकार है। मिल मालकान का कहना है कि गुड़ इंडस्ट्री की वजह से मिल को गन्ना नहीं मिल पाता और यही वजह है कि पेशावर मर्दान की 4 शुगर मिल में से 2 मिलें गन्ना न मिलने की वजह से बंद हैं। गुड़ पर चूँकि हुकूमत का कोई टैक्स नहीं है और हमारी चीनी पे हुकूमत का टैक्स है, लिहाजा हम रेट में उनको बराबर मुकाबला नहीं कर सकते। मिल मालकान का कहना है कि हज़ारों लोगों का रोज़गार बराह रास्त और बिलवास्ता इससे वाबस्ता है और यही कोशिश है कि मुल्क की मईशत और लोगों को रोज़गार मुहैया करने में भी बेहतर से बेहतर किरदार अदा कर सकें। हुकूमत के मौसर इक़दामात से न सिर्फ काश्तकारों के मसाइल हल होंगे, बल्कि मुल्क की मईशत की मजबूती के साथ साथ चीनी के बहरान पर भी काबू पाया जा सकता है। जावेद अख्तर, PTV न्यूज़, मर्दान। हुकूमत पंजाब ने नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उन्हें मुलाजमतें फराहम करने के लिए गैर मुल्की ताउन से TVET सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद के हुनरमंद रोजगार मेले में 8 मुख्तलिफ फनी इदारों ने हुनरमंद अफराद के लिए मौके पर इंटरव्यूज करके उन्हें मुलाजमतें दे दी। तफसील से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। हुनरमंद अफराद को रोजगार मुहैया करने के लिए हुकूमत पंजाब, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे और जर्मनी की हुकूमतों के ताउन से शुरू किए जाने वाले TVET सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुनक़िद किए गए हुनर रोजगार मेले में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फनी बोर्ड्स और निजी फनी इदारों के सरबराहों के अलावा बड़ी तादाद में हुनरमंद ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। It is very important that for vocational training, the public sector and the private sector work together to train young people for opportunities in the private sector. ये काम जो है वो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी हर जो इंडस्ट्री है, हर जो ऑफिस है, उनको भी ये काम करना चाहिए। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है, ख़ास तौर पर हुनरमंद अफराद को रोज़गार दिया जा रहा है। हम पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरह मुल्क बेहतरीन तरक्की की तरफ जाएगा। इस मौके पर 8 मुख्तलिफ फनी इदारों के 400 से ज्यादा फारिग तहसील अफराद ने मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए अपने कवायफ जमा करवाए। 20 से जायद कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदों ने इनसे मुलाजमतों के लिए मौका पर इंटरव्यू लिए। हुनर रोजगार मेले में इक़्तिसादी मुज़ाकरे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कारोबारी इदारों के सरबराहों ने हुनरमंद अफराद के लिए मुलाजमत के मौके मुहैया करने के तरीका कार पर बहस की। हुकूमत पंजाब की तरफ से शुरू किए गए TVET सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उन्हें बेहतरीन मुलाजमत के मौके मुहैया किए जाएंगे। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, गुजरांवाला में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खसरा और रुबैला की बीमारियों से बचाव की खुसूसी मुहिम का आगाज 15 नवंबर से होगा। मुहिम 13 रोज तक जारी रहेगी। इस दौरान महकमा सेहत की टीम्स घर घर जाकर 9 से 15 साल की उम्र के बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाएंगी, जबकि 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट करें गुजरांवाला से शहरियार भट्ट।
गुजरांवाला हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से खसरा और रूबेला की बीमारियों से बचाव के लिए आगाही सेमिनार मुनक्कद हुआ। सेमिनार से डॉक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि खसरा और रूबेला मोहलक वबाई अमराज हैं, जिससे मुतासर अफराद दीगर सेहतमंद अफराद को भी मुतासिर कर सकते हैं। खसरा और रूबेला की जो कौमी मुहिम 15 से 27 नवंबर तक 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चों को खसरा और रूबेला की वैक्सीन के सिलसिले में मुनक्कद की जा रही है, उसमें आप अपना भरपूर तावन करें। रूबेला की वैक्सीन इंतहाई महंगी होने के बावजूद यूनिसेफ और WHO के ताउन से महकमा सेहत पाकिस्तान भर की तरह गुजरांवाला में भी 21 लाख से जायद 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन मुफ्त लगाई जाएगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे भी पिलाए जाएंगे। मीजल और रूबेला दो ऐसी चीजें हैं, अगर ये खुदा न खास्ता वक्त पे तशखीस ना हो और बिगड़ जाए तो इससे निमोनिया और एनकेफेलाइटिस हो जाता है, जो कि सारी उम्र के लिए अपाहज होने का खतरा होता है। पाकिस्तान में खसरा के साथ साथ रूबेला की वैक्सीन पहली बार लगाई जाएगी। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुजरांवाला। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें, बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं हूं सदफ अली खान। मेरे साथ आज मौजूद हैं फ़हद उमर, जो कि हमारे साइन इंटरप्रेटर हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान क़यूम, जो कि हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान शराजी, जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। बड़ा मार्का कल सजने को तैयार। न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दुबई, शाम 7 बजे PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको आप ज़िशान? देखना तो हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फ़ाइनल होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। अब हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है, तो दोनों में से एक टीम को तो सपोर्ट हमें करना ही पड़ेगा। तो न्यूजीलैंड के साथ तो वैसे ही हम अपने मामलात जो है वो फिर ठीक कर चुके हैं। हमारा उनके साथ भी मामला ठीक हो चुका है जब हमने उनको
अपने दूसरे जो ग्रुप मैच था उसमें हराया था। बहरहाल ज़बरदस्त जो है दोनों टीमों ने इस इवेंट में मुकाबला किया है और जिस तरह से सेमीफाइनल में दोनों टीमें खेलकर फाइनल में पहुंची हैं, वाकई ये डिज़र्व करती थी, क्योंकि इनिंग्स के बिल्कुल एंड्स में मैच जो है वो दूसरे के से लपेट के अपने पास ले आना, दोनों टीमों की ये कमाल कारकर्दगी है। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान से जो है वो एक ही ओवर में मैच जो है वो अपनी तरफ उसका रुख किया, और न्यूजीलैंड ने भी जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ खेला, तो यकीनन एक बड़ा ही टफ जो है वो मैच होने वाला है। और दुबई के स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप का जो इख्तिताम है वो शानदार अंदाज में ही होगा। अरसलान, कैसे देखते हैं आप इसको? न्यूजीलैंड अपनी टीम अपने जो ग्रुप के अंदर जो मैचेस जीत के यहाँ तक पहुंची, कंपैरेटिवली उतनी मजबूत टीमें नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला था वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मजबूत टीमों के साथ था। किस टीम को आप देखते हैं कि ज़्यादा मजबूत है अभी? देखिए, अगर जिस तरह हमने दोनों सेमीफाइनल्स देखे तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कौन जीता है वो भी किस्मत पे है, और जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, जिस तरह दोनों सेमीफाइनल्स में हुआ। जहाँ तक आप दोनों टीमों की बात कर रही हैं तो सिर्फ मुझे दो प्लेयर्स हैं, एक न्यूजीलैंड में और एक ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो मैक्सवेल ने अभी तक कोई परफॉर्म नहीं किया, और वो बड़े मैच का प्लेयर है। मुझे था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करेगा, लेकिन उसमें भी नहीं कर सका। और दूसरी साइड से अगर मैं कैप्टन को देखता हूं, न्यूजीलैंड के कैप्टन को, तो उन पे भी एक बड़ी इनिंग ड्यू है। तो ये दोनों प्लेयर्स देखने वाले हैं। बाकी स्ट्रेंथ में दोनों टीमें इक्वल हैं। आपने देखा दोनों सेमीफाइनल्स में कि कैसे, जैसे अभी जिशान कह रहे थे कि अगले के मुंह से विक्ट्री छीन के ले गई हैं दोनों टीमें। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें बिल्कुल तगड़ा मुकाबला है, लेकिन ये दो प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ कि इनमें से जिस टीम का जो प्लेयर क्लिक कर गया, मेरे ख्याल में वो टीम जीत जाएगी। सही, मतलब मुकाबला तगड़ा है, लेकिन टॉस जो है वो, जैसा कि जिशान हम ऑफेयर भी बात कर रहे थे कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन सारे मैचेस में हमने देखा कि उसने प्ले किया, और आगे भी यही होने जा रहा है। पिच के हवाले से क्या कहेंगे आप जिशान, के पिचिंग कंडीशंस दुबई के किसको सपोर्ट ज़्यादा करेंगे? हमें देखा लो स्कोरिंग पिचेस हैं और उस तरीके से जो है वो बैट्समैन को फेवर नहीं करती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, फाइनल के लिए जो पिच बनाई गई है वो बिल्कुल एक नई पिच है, और वो बैटिंग को सपोर्ट करेगी। जिस तरह से हमने सेमीफाइनल में देखा, वो भी बैटिंग को सपोर्ट कर रही थी। और अगर आप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें तो आपको बिल्कुल लगेगा कि पाकिस्तान ने कम रन बनाए थे। अगर उसकी कंडीशन देखते आप, विकेट की कंडीशन, वो बिल्कुल बैटिंग विकेट थी, और पाकिस्तान को 10 से 15 रन मज़ीद उस पर बनाने चाहिए थे, तब जाके मैच जो था वो शायद फंस सकता था या पाकिस्तान अपने हक में कर सकता था। तो दुबई की जो पिच है वो बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, और अब जो फाइनल के लिए जो पिच तैयार की गई है वो भी ज़बरदस्त एक बैटिंग विकेट होगी, और यकीनी तौर पे जो है वो हमें चौके और छक्के ज़्यादा नज़र आएंगे, ना कि हमें विकेटें उड़ती हुई नज़र आएंगी। लेकिन असलान में आपसे बात ज़्यादा देख रहे हैं शाना, स्कोर लो स्कोरिंग स्कोर ही है, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि बैटिंग विकेट है तो यकीनी तौर पे 170 180 प्लस जो है इसको जाना चाहिए था। इब्तदा में दुबई में स्कोरिंग कम हो रही थी, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता जूं ये जो वर्ल्ड कप जो है वो आगे बढ़ा, इसमें टीमों के जो है वो कंडीशन से हमांग हुई, तो उन्होंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर लिया कि वो अब समझ गई हैं कंडीशंस को, तो वो यकीनी तौर पे ये अब बड़ा टोटल बनेंगे। तो 180 प्लस जो है मेरे ख्याल में पहले टीम को बनाना चाहिए, तब जाके ही जो है वो मैच इंटरेस्टिंग होगा। अरसलान, आप क्या कहते हैं कि कहाँ तक स्कोर जाएगा? देखिए, जिस तरह अभी हमारे वहाँ पे कुछ दोस्त मौजूद हैं और जो हमें वहाँ से खबरें मिल रही हैं, बिल्कुल जो जीशान कह रहा है कि बैटिंग पिच होगी, जो नई पिच बनाई जा रही है और जो कि अभी तैयार है, तो वो बैटिंग पिच पे अगर तो पहले खेलते हुए अब वो पाकिस्तान की तरह 180 से कम करेंगे तो मेरे ख्याल में सेकंड टीम को एडवांटेज होगा और वो जीत जाएगी। लेकिन अगर वो 180 प्लस पे जाते हैं, 190, 185 या 190 प्लस पे जाते हैं, तो फिर बड़ा मज़ेदार का कांटे का मुकाबला होगा, और वो जो एक एज होगा टॉस जीतने वाला वो खत्म हो जाएगा। लेकिन असलान, ओस जो है मैं देख रहा हूँ इस तरह से मैटर नहीं कर रही, क्योंकि सेकंड बॉलिंग वाली टीम भी जो है वो एक किस्म का मैच जो है वो जीतने की पोजीशन में होती है। अगर दोनों सेमीफाइनल में हम देखें तो अगर वो एक ओवर जो है मैटर कर गया, अगर वो ओवर ना होता तो यकीनी तौर पे जो है वो बॉलिंग टीम जीत सकती जब हमारी वहाँ पे बात हुई है तो वो ये बता रहे हैं कि आईसीसी इस हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, स्प्रे किए जा रहे हैं और बाकी चीज़ें की जा रही हैं ताकि औस जितनी कम से कम पड़े। और सोशल मीडिया पे कुछ सार्फिन ये भी कहते हैं कि इतने बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनमें अगर औस वाला फैक्टर होता है तो थोड़ा सा अर्ली मैच अगर स्टार्ट करवा लिया जाए तो दोनों टीमों के लिए इक्वल चांस हो सकता है।
صحیح، نیوزی لینڈ جو ہے وہ پہلی مرتبہ فائنل تک رسائی حاصل کی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے، جبکہ آسٹریلیا جو ہے وہ دوسری مرتبہ فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ پریشر بھی ظاہر سی بات ہے دونوں ٹیمز پہ ہوگا. ہم نے سیمی فائنل میں بھی یہ دیکھا کہ ٹیمز جو ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر بھی تھیں انیشلی، پھر آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا جو ہے نا انہوں نے اپنا مومنٹم جو ہے وہ ڈرا کیا. کیا دیکھ رہے ہیں ذیشان، کیسا جائے گا میچ؟ پریشر کتنا ہوگا؟ پریشر تو بہت ہوگا. دیکھیں فائنل جو ہوتا ہے اس کا پریشر، کوئی اگر ٹیم یہ کہے کہ ان کو فائنل کا پریشر نہیں ہے تو بالکل غلط ہوگا. فائنل کا پریشر بہت ہوتا ہے. اسی فائنل کے لیے تو وہ پورے ٹورنامنٹ میں کھیل کر آتے ہیں، لڑ کے آتے ہیں، مقابلہ کر کے آتے ہیں. اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا فائنل اگر ہو تو وہ تو ویسے ہی پریشر والا ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ٹیم کی آپ پہلے سے پریڈکشن نہیں کر سکتے. دونوں جو ہیں وہ ٹیمیں، ہم نے 2015 کا ورلڈ کپ کا فائنل بھی دیکھا کہ کس طرح سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں جو ہیں وہ پورے ورلڈ کپ کھیل کر آئی تھی اور فائنل میں پہنچی تھی اور بیسٹ ٹیمیں تھیں اس کی. اس دفعہ بھی دیکھیں 2 بیسٹ ٹیمیں ہی پہنچی ہیں فائنل میں، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو ایج حاصل رہا ہے دوسری ٹیموں پہ، اسی وجہ سے یہاں پہنچی ہیں. اب 2 بڑی ٹیموں کے درمیان ایک بڑا مقابلہ ہے، حتمی مقابلہ ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ ایک T20 کا نیا چیمپئن ملے گا. آسٹریلیا کی ٹیم 2010 میں فائنل میں پہنچی تھی لیکن انگلینڈ کے ہاتھوں سے شکست ہو گئی تھی. نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اب تک 2 دفعہ ہی سیمی فائنل تک پہنچی، اس سے آگے نہیں گئی تھی. اب پہلی دفعہ نیوزی لینڈ فائنل میں پہنچے گا. نیوزی لینڈ تھوڑی سی بدقسمتی یہ بھی رہی ٹیم کہ وہ 2019 کا ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا، وہ ہار گئی. 2015 کا فائنل کھیلا انہوں نے 50 اوورز ورلڈ کپ کا، وہ ہار گئے. تو اب میرے خیال میں نیوزی لینڈ دیکھ رہے ہوں گے کہ قسمت جو ہے اس دفعہ نیوزی لینڈ کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں، کیونکہ نیوزی لینڈ محنت تو پوری کر رہا ہے. بالکل. اچھا ارسلان، آپ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ویجیلنٹ ہو کے کھیلنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی. ایک گیند، ایک کیچ اگر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تو وہ ایک بال بھی جو ہے نا وہ میٹر کر رہی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سب کو؟ دیکھیں یہ بات تو شروع سے ہے کہ کیچز ون دا میچز. آپ نے سیمی فائنل میں دیکھا ہم نے کچھ رن آؤٹ مس کیے، کیچز آخری جو وہ 19ویں اوور میں کیچ مس کیا. تو یہ چیزیں ہیں، آپ نے بڑے کیلکولیٹڈ ہو کے کھیلنا ہے اور آپ نے مارکنگ کر کے کھیلنا ہے. اور یہ ٹیمیں دونوں ایسی ہیں، اگر کوئی ایشیائی ٹیم ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ ہوم ورک کے ساتھ نہیں آئیں گے. جیسے کہ پاکستان کا جب ہم دیکھ رہے تھے کہ وارنر کھڑا تھا اور وارنر کا ہمارے جو عماد وسیم ہے اس کے خلاف سٹرائک ریٹ 245 کا ہے، پھر بھی ہم اسے اوور دے رہے تھے. تو وہ اس طرح نہیں کرتے. انہوں نے پوری مارکنگ کی ہوتی ہے، ان کے پاس سٹیٹس پورے ہوتے ہیں اور ان سٹیٹس کے مطابق وہ پلیئرز کے خلاف اپنے بالرز یا بیٹسمین اتارتے ہیں کہ یہ پلیئر، یہ بالر سپن، یہ بیٹسمین سپن کے اگینسٹ بڑا اچھا ہے یا یہ فاسٹ کے اگینسٹ اچھا ہے. تو وہ اسی طریقے سے ان کی لائن اپ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں غلطی نہیں کریں گے اور دونوں کے لیے غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے. اور جس طرح ابھی ذیشان کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ دونوں یعنی فرسٹ ٹائم ہمیں نیا ایک ورلڈ چیمپئن ملے گا تو دونوں اپنی پوری جان ماریں گے. بالکل بڑا کھیل ہونے جا رہا ہے، غلطی کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، یہاں لے کے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین T20 ورلڈ کپ اسپیشل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بڑا مارکا کل سجنے کو تیار ہے، نیوزی لینڈ ورسز آسٹریلیا. دبئی میں شام 7 بجے PTV اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر عبدالغفار جو کہ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ کل کے میچ کو.
आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि कल के इस बड़े मार्के को किस तरह देखते हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर आइडियली तो हम अब तक उसी सोच में हैं कि पाकिस्तान की टीम जितना अच्छा खेली थी, काश कि पाकिस्तान इस फाइनल में पहुंचा होता, लेकिन बहरहाल अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने इस इवेंट को ख़त्म किया, बहुत अच्छा खेले। लेकिन कल के मैच में यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में अगेन टॉस का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपने देखा सेमीफाइनल में भी वही दोनों टीमें जीती जिन्होंने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने को तरजीह दी, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन विकेटों पर टारगेट को डिफेंड करना। और हमने देखा कि आखिरी 4 ओवर में ही दोनों सेमीफाइनल के अंदर जो है वो काया पलटी। सो लेट्स सी कि दोनों टीमें जो है वो कल किस प्लान से आती है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे सेमीफाइनल में हुआ। टॉस की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को एज हासिल होगा। अच्छा गफ़ार, डेवन कॉनवे जो है वो नहीं खेल रहे न्यूजीलैंड की तरफ से, तो उनका कॉम्बिनेशन जो है न्यूजीलैंड का ख़राब हो गया फाइनल से पहले, तो क्या कहेंगे, असर पड़ेगा टीम पर इनका? बिल्कुल निशान पड़ेगा, चूंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मार्टिन गुप्टिल आपको पता है कि यूई की विकेटों पर इतने कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने एक अच्छी इनिंग जरूर खेली है। लेकिन कॉनवे एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अटैक करते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं। फिर उनकी जो लास्ट सेमीफाइनल में इनिंग थी वही बड़ी वैल्यूएबल थी, तो उनकी कमी जरूर महसूस होगी। लेकिन न्यूजीलैंड को अगर आप देखें निशान, आप खुद भी अच्छी तरह समझते हैं ये सारे मामला, क्योंकि उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जब भी कोई मौका आता है स्टैंड आउट होते हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा डैरन मिचेल ने रन किए, जब जरूरत पड़ी जिमी नेशन ने रन किए। तो छुपे रुस्तम है और न्यूजीलैंड की टीम से आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही, फाइनल के बड़े मार्के के लिए न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नई पिच तैयार की जा रही है दुबई स्टेडियम में। एक्सपर्ट्स ही पेश गोई कह रहे हैं कि कल जब स्कोर थोड़ा ऊपर जाने की उम्मीद है। आप किस तरह देखते हैं इसे? देखिए होना तो ऐसे ही चाहिए। इवन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में 176 रन बने, तो कि पाकिस्तान ने 19 ओवर में ज्यादा रन नहीं बनाए, वरना शायद पाकिस्तान 185 190 भी कर सकता था। लेकिन होगा ऐसे ही, जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको ये एडवांटेज तो जरूर होगा कि वो पहले एक अच्छे सर्फेस पे रन बनाए। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि जो ड्यू फैक्टर है, स्पेशली मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को उसका जो है ना बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, बिकॉज उनके पास 2 बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं और वो उन पर डिपेंड भी बहुत करते हैं। तो न्यूजीलैंड की तो बड़ी ख्वाहिश होगी कि किसी तरह जो है वो टॉस जीत के उनको पहले फील्डिंग करने का मौका मिले और फिर रन चेस की तरफ जाएं। लेकिन हाई स्कोरिंग मैच होना भी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आईसीसी इस हवाले से जो एफर्ट कर रही है वो कामयाब भी होगा। सही गफ़ार, ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों में से आप क्या कहते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है, किसके चांसेस ज़्यादा हाई हैं जीतने के लिए? देखिए आईसीसी इवेंट के अगर तारीख उठा के देखें हम, तो 4 मरतबा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने कभी वर्ल्ड T20 नहीं जीता और ऑफकोर्स अभी तक तो न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप ही नहीं जीता। तो न्यूजीलैंड के लिए पहली बड़ी जो है वो एक आईसीसी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। 2015 की फाइनल का ये एक रीमैच है, क्योंकि दोनों टीमें 2015 के मेंस वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने हुई थी। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया जो है वो कुछ फेवरेट दिखाई देता है, लेकिन न्यूजीलैंड भी किसी तौर कम नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई पिच है, बड़ा मार्का है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, बहुत विजिलेंट होना ज़रूरी है। क्या कहते हैं अरसलान, आपके कौन सी टीम की बैटल लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम की जो है बॉलिंग लाइन उसको आप कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए अगर देखा जाए तो दोनों टीमें, जैसे मैं पहले आपके सवाल के जवाब में कह रहा था, इक्वल चल रही हैं। लेकिन अगर फिर भी हम और नज़दीकी से देखें तो मेरे ख्याल में जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है वो न्यूजीलैंड की बॉलिंग से ज़्यादा मजबूत है। उसमें आप जैम्पा को देख लें, आप उसमें हैजलवुड को देख लें, कमंस को देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ कमंस का 19वां ओवर देख लें। वो एक ओवर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान यानी जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था उसको छोड़ दे, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो उसमें भी 19वें ओवर में पाकिस्तान ने जो वो खाया था, तो वहाँ पे मैच पाकिस्तान हार चुका था। ठीक हो गया। ज़िशान, आप ये बताइएगा कि दोनों टीमों से आपकी फेवरेट कौन सी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि गफ़ार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रही है स्टैट्स को देखते हुए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़रूर फेवरेट है, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफ़ा न्यूजीलैंड जो है ये फाइनल हारने की रिवायत जो है वो तोड़ देगा। जिस तरह से उसने सेमीफाइनल में उनका मोरल बूस्ट हुआ है, यकीनी तौर पे वो उसको कैरी ऑन करेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। सही, अरसलान आप क्या कहेंगे, दोनों में से कौन? देखें जी, ऑस्ट्रेलिया ये फाइनल जीत रहा है और बड़े अच्छे तरीके से। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल से इतना ही। देखते रहिए PTV न्यूज़।